Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nausheen Afshan and you are watching Dr. Nausheen Afshan YouTube. I hope that all of you would be fine and I am thankful to you for watching this video. To watch more videos, please subscribe my channel and press bell icon. Our today's lecture is about molecular orbital theory, that is also abbreviated as MOT, where we will discuss some basic terminology and then its postulates. So first of all, talking about the atomic orbital, as you have heard that if we take an example of the hydrogen atom, it consists of a nucleus and one electron only that resides in one s orbital. And also you have heard that pi bond is formed via sideways overlap of two p orbitals. So here the s and p orbitals, similarly d orbital and f orbitals, all these are called as atomic orbitals. So what actually are the atomic orbitals mean? In fact, the atomic orbital is a function that describes the location and wave-like behavior of any electron in an atom. Because when electron resides in any orbital, it does not follow the linear path like this. Rather, it is in the wave-like path. So the electron revolves in a wave-like manner, and this wave-like behavior, and at any point, for example, at this moment its the position of the electron is here, and at the next moment the position of the electron might be possible it would be here. So in this way we determine its position and wave-like behavior by a function that is called as atomic orbitals. Then there are further types of the atomic orbitals, whether it is in the spherical form or in the lobed form. That is the p orbital and the spherical one is s orbital. So in this way, here this is the concept of atomic orbital, that a function that describes location or position and wave-like behavior of an electron in any atom. Then there is molecular orbital, and one thing to be important in this concept, the atomic orbitals resides along one nucleus, along a single nucleus. When we talk about the molecular orbital, it is multicentric. That means here the electrons revolve around more than one nucleus. So the molecular orbital actually means that any electronic energy level in a molecule that corresponds to the charge cloud distribution in space. That means it is actually energy level. And what happens at that energy level? That belongs to the charge cloud distribution. That means the electrons make a charge, so the probability of finding the electrons that makes the charge cloud distribution is called as molecular orbital. Now let's move towards its further types. The molecular orbital is also called as wave function. Now move towards the categories of molecular orbital. There are three categories that are bonding molecular orbital. It is any electronic energy level in a molecule that lies at a lower energy level
as compared to that of atomic orbitals. यहाँ पे हम इस मोलिकुलर ऑर्बिटल को के एनर्जी लेवल को कंपेयर कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल के साथ. Bonding molecular orbitals are such molecular orbitals whose energy level lies below the value of energy level of atomic orbitals. And the antibonding molecular orbitals are such molecular orbitals whose energy level lies above the energy level of atomic orbitals. And the non-bonding molecular orbitals are such molecular orbitals whose energy level is comparable with that of atomic orbital. ठीक है, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल के ऑलमोस्ट इक्वल होगा. यहाँ तक हम जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी तक थे. नेक्स्ट जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे इनका एनर्जी लेवल अप एंड डाउन जाता है. और नेक्स्ट पोस्टुलेट भी देखते हैं हम कि उसमें क्या होता है. नाउ लेट्स सपोज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज H2 वेयर वी कंसीडर द टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन and this is also 1s orbital of hydrogen and it's also 1s orbital of hydrogen. They combine together to overlap each other. ये आ जाएगा इनका overlapped region. Now let's make an expression for this. जो resultant molecule हमारे पास आएगा उसका मोलिकुलर वेव फंक्शन हम फाई से डिनोट करते हैं. सो द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फाई दैट वुड बी इक्वल टू वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन. अच्छा, इन दोनों सेम है, जस्ट हम अपनी आसानी के लिए इनको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं हाइड्रोजन ए से और एटम बी से. हाइड्रोजन एटम बी दैट इज HA एंड HB. तो ये जो फंक्शन है ये एटम A के एटॉमिक ऑर्बिटल का है दैट इज साई A 1s प्लस C देन साई B एंड 1s. इसको फाई बोलेंगे और ये वेव फंक्शन जो है दैट इज एटॉमिक वेव फंक्शन इसको साई बोलेंगे. That is psi A, that 1s orbital of atom A, and here this 1s orbital is of atom B. और ये वेव फंक्शन psi B हाइड्रोजन एटम B को डिनोट कर रहा है और psi A इसको डिनोट कर रहा है. ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे C क्या है. C is actually a coefficient और ये क्या शो करता है कि अलोंग द मोलिकुलर एक्सिस जो ये ओवरलैप्ड रीजन है, ठीक है, इसको ये डिनोट करेगा. दैट इज सी डिनोटिंग द कोएफिशिएंट दैट मीन्स द ओवरलैप्ड रीजन अलोंग द मोलिकुलर एक्सिस. क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं दोनों, हाइड्रोजन एटम्स हैं दोनों और दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर HF होता तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती तो ये ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता और हाइड्रोजन की तरफ कम रहता. लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इसलिए दोनों की जो अट्रैक्शन होगी द इक्वल टेंडेंसी होगी. दोनों की प्रोबेबिलिटी या दोनों का जो ओवरलैप्ड रीजन है वो इक्वली कंट्रीब्यूट होगा. दैट इज H2. Here it is 1s, it is also 1s. Okay. C is a coefficient which represents the relative proportion of psi A and psi B in the molecular orbital phi. और इसकी रेशो क्या होती है दैट इज 1 स्क्वायर
to C square. Because both of the hydrogen atoms are identical, so both of these wave functions would make the equal contribution. And in such case, we may write it as C square is equal to 1, and that means C is equal to plus minus 1. ठीक है, जो कोएफिशिएंट है वो क्या डिनोट करेगा कि ये इस प्रोपोर्शन में था, 1 स्क्वायर C स्क्वायर के प्रोपोर्शन में था. उसके बाद क्योंकि दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं तो C स्क्वायर 1 आ जाएगा हमारे पास. और यहाँ से ये क्या डिनोट करता है कि अगर स्क्वायर हम ख़त्म करते हैं, दैट इज़ ओनली कोएफिशिएंट C, दैट वुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1. अब इस फैक्टर को हम अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या आएगा हमारे पास. इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो इसमें क्या है, इसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहेंगे. एटॉमिक ऑर्बिटल तब तक था जब तक ये इंडिविजुअल फॉर्म में थे. जब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो उसके बाद हम इसको मोलेकुलर ऑर्बिटल कहेंगे. और यहीं से हमें आगे पता चलेगा कि ये बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है या एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है. इस मोलेकुलर ऑर्बिटल से आगे दो रिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं, क्योंकि C की वैल्यू हमने कोएफिशिएंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 में लेके जानी है. अगर प्लस होगी, प्लस 1 होगी तो जस्ट यहाँ पे सेम यही आएगा हमारे पास. लेट्स सपोज हियर psi A 1s प्लस psi B 1s. और अगर -1 की वैल्यू हम यहाँ C की जगह सब्स्टिट्यूट करें, दिस वुड बी psi A 1s माइनस psi B 1s. सो यहाँ जो हमारे पास इंडिकेट कर रहे हैं ये साइन प्लस और माइनस के, ये क्या कर रहे हैं, ये शो करेगा कि दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, दैट रीइंफोर्स ईच अदर. लेकिन ये क्या शो करेंगे, अच्छा रीइंफोर्स करेंगे तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, दैट इज लाइक दिस वन. इसमें क्योंकि दो न्यूक्लियाई हैं तो दोनों न्यूक्लियाई यहाँ आ जाएंगे. ये ओवरलैप्ड रीजन वेव फंक्शन के फॉर्म में, ये दो न्यूक्लियाई आ जाएंगे. इसलिए हम इनको मोलेकुलर ऑर्बिटल्स को कहते हैं दीज आर मल्टी सेंट्रिक या मल्टी सेंटर्ड, क्योंकि इनमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं. अच्छा, इसको हम डिनोट कर लेते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन एटम A और हाइड्रोजन एटम B का न्यूक्लियस. दिस इज द आफ्टर द ओवरलैपिंग इट वुड बी डिनोटेड लाइक दिस. और इसका अगर हम एनर्जी लेवल यहाँ पे ड्रॉ करें, दिस इज द एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा जो रीइंफोर्स्ड रीजन है. ठीक है, और इसको हम कहेंगे दिस इज बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल. ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर दैट द बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल लाइज एट अ लोअर एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल यहाँ पे आ रहा है, जबकि बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल का लोअर वैल्यू पे आ रहा है. इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएं, इस एक्सप्रेशन की तरफ, तो ये क्या करेंगे, हमारे पास ये आ जाएंगे इस फॉर्म में. ये न्यूक्लियस एटम B को शो करेगा और ये एटम A के न्यूक्लियस को शो कर रहा है. और ये होगा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में कोई नॉन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल नहीं जनरेट होता, जस्ट बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं.
और अब यहाँ से देखें कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल पे है, इनका एनर्जी लेवल से हायर वैल्यू आ रही है इसकी एंटी बॉन्डिंग की। तो इस तरह हम इन्हें कहते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स are as a result of reinforced region and subtraction factors। अच्छा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज द एडिशन, reinforced या addition of the overlapped region और subtraction of the overlapped region। तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जनरेट होता है। ये कॉन्सेप्ट था जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।